हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में आज जो कुछ भी वर्तमान में है वो आपने खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, तो आप मेरे साथ सहमत होंगे। ये मेरा वर्षन नहीं है, मेरी कही हुई बात भी नहीं है। ये कही हुई बात है सदियों पुरानी, बहुत सारे गुरुओं की। और ये बात इस लिखी हुई है इस किताब में, जिसका नाम है द सीक्रेट। रोंडा बाइन की लिखी हुई ये किताब है, बेस्ट सेलर बुक है। और इसे बेस्ट बुक माना जाता है फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ बैठकर ये किताब पढूं और हम इस किताब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अपनी जिंदगी जिएं। तो चलिए शुरू करते हैं। द सीक्रेट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन क्या है? क्या ये मैग्नेटिज्म है कि मैग्नेट मैग्नेट को और लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी? नहीं। यहाँ की अट्रैक्शन जो है हमारी जिंदगी की परिस्थितियों के बारे में कह रही है कि हमारी जिंदगी में आज जो कुछ भी है वो हमने अपनी तरफ खुद अट्रैक्ट किया है। The secret is the law of attraction. Everything that's coming into your life, you are attracting into your life, and it is attracted to you by virtue of the images you are holding in your mind. It's what you're thinking. Whatever is going on in your mind, you are attracting to you. Every thought of yours is a real thing, a force. यानी कि आपकी जिंदगी में आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, आप आज जिस भी सिचुएशन में हैं, वो सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है। आपने जैसा जैसा सोचा वो आपकी हकीकत बनती गई। पता है, इट कैन हिट यू हार्ड। ये बहुत शॉकिंग है सुनना, क्योंकि हम यूजुअली सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल दूसरों को ठहरा देते हैं। पर सच यही है, जितनी जल्दी जान लेंगे उतनी जल्दी आप अपनी जिंदगी के इंचार्ज खुद बन सकते हैं। The greatest teachers who have ever lived have told us that the law of attraction is the most powerful law in the universe. Poets such as William Shakespeare, Robert Browning, William Blake delivered it in their poetry. Musicians such as Ludwig van Beethoven expressed it through their music. जितने भी philosophers, religious philosophers, writers, scientists, singers एग्जिस्ट करते हैं या एग्जिस्ट करते थे, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, सुना है, जिनकी क्रिएशंस को आप इतना पसंद करते हैं, वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में जीते थे। और उनके राइटिंग्स में भी उन्होंने वो लिखा है। Religions such as Hinduism, Hermetic traditions, Buddhism, Judaism, Christianity, and Islam, and civilizations such as the ancient Babylonians and Egyptians delivered it through their writings and stories. Religious philosophies में भी ये बात कही गई है, पत्थर की लकीर में ये बात लिखी गई है। ये बात नई नहीं है, उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी पृथ्वी, जितनी हमारी एग्जिस्टेंस। बार बार लिखी गई है, बार बार कही गई है, पर हमने इसे जानने की कोशिश नहीं की। जिन लोगों ने इसे जाना उनकी जिंदगी तो मैग्निफिसेंट हो गई। The law began at the beginning of time. It has always been and will always be. It is the law that determines the complete order in the universe. Every moment of your life, every single thing you experience in your life. It doesn't matter who you are or where you are, the law of attraction is forming your entire life experience, and this all powerful law is doing that through your thoughts. You are the one who calls the law of attraction into action, and you do it through your thoughts. आपकी सोच से आप अपनी जिंदगी में सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। In 1912, Charles Hannell described the law of attraction as the greatest and the most infallible law upon which the entire system of creation depends. Wise people have always known this.
You can go right back into the ancient Babylonians. They have always known this. It's a small select group of people. पहले के लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था, वाइज लोगों को पता था. The ancient Babylonians and their great prosperity have been well documented by scholars. They are also known for creating one of the seven wonders of the world, the Hanging Gardens of Babylon. Through their understanding and application of the laws of the universe, they became one of the wealthiest races in history. बैबिलोनियंस की रेस वन ऑफ द वेल्दिएस्ट रेस इन हिस्ट्री है. उन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था. Why do you think that 1% of the population earns around 90% of all the money that's being earned? Do you think that's an accident? It's designed that way. They understand something. They understand the secret. And now you are being introduced to the secret. सुनने में अजीब लगता है, पर ये सबसे बड़ा सच है कि सिर्फ 1% लोगों के पास 96% ऑफ द मनी जो कि एग्जिस्ट करती है. तो क्या ये एक्सीडेंटल है? नहीं, एक्सीडेंटल नहीं है. उन लोगों ने इस वेल्थ को, इस अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है. आप और मैं भी ये कर सकते हैं अगर हमें उस सीक्रेट के बारे में पता चल जाए जो कि इस किताब में लिखा हुआ है. People who have drawn wealth into their lives used the secret, whether consciously or unconsciously. They think thoughts of abundance and wealth, and they do not allow any contradictory thoughts to take root in their minds. जिन लोगों के पास पैसा है वो इस वजह से है क्योंकि वो हमेशा अपनी माइंड में पैसे और अबंडेंस के बारे में सोचते हैं और किसी भी दूसरी थॉट को उसे कॉन्ट्राडिक्ट करने नहीं देते. नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाते. देयर प्रीडोमिनेंट थॉट्स आर ऑफ वेल्थ. उनकी प्रीडोमिनेंट थॉट्स हैं कि वो पैसा कैसे बनाएं. दे ओनली नो वेल्थ एंड नथिंग एल्स एग्जिस्ट्स इन देयर माइंड्स. वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसा कमाने, पैसा बनाने के बारे में सोचते हैं, इसलिए उनके पास पैसा है. Whether they are aware of it or not, their predominant thoughts of wealth are what brought wealth to them. It is the law of attraction in action. इस जगह पर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करते हुए देखने को मिलता है कि पैसा उनके पास ही रहेगा जो पैसा कमाने के बारे में, पैसा बनाने के बारे में, अबंडेंस के बारे में सोचेंगे. A perfect example to demonstrate the secret and the law of attraction in action is this. You may know people who acquired massive wealth, lost it all within a short time and acquired massive wealth again. आप ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में खूब पैसा कमाया, फिर किसी न किसी वजह से वो पैसा चला गया, लेकिन फिर वो पैसा उनकी लाइफ में वापस आया, उन्होंने दोबारा कमा लिया थोड़े से समय में. What happened in these cases, whether they knew it or not, is that the dominant thoughts were on wealth. This is how they acquired it in the first instance. Then they allowed fearful thoughts of losing the wealth to enter their minds until those fearful thoughts of loss became their dominant thoughts. They tipped the scales from thinking thoughts of wealth to thinking thoughts of loss, and so they lost it all. Once they had lost it, however, the fear of loss disappeared and they tipped the scales back with dominant thoughts of wealth, and wealth returned. The law responds to your thoughts no matter what they may be. यानी कि उन लोगों ने पैसा कमाने के समय तो बहुत पैसे के बारे में सही सोचा, लेकिन जब उनके पास पैसा आ गया तो जो है वो उस पैसे के को खो दें, वो उनसे दूर ना चला जाए, ऐसा सोचने लगे. और जब उन्होंने उस बारे में सोचना शुरू किया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वापस काम करने लगा और वो पैसा उनके पास से चला गया. लेकिन जब पैसा चला गया तो डर भी चला गया. फिर वो वापस पैसा कमाने के बारे में सोचने लगे
जिससे कि पैसा वापस उनके पास आ गया। कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम करता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आपकी थॉट्स आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ अट्रैक्ट कर देंगी जिस बारे में आप सोचेंगे। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट कर देंगी। आज के लिए इतना ही। अब अगले एपिसोड में मैं वापस आपको कंटिन्यू करके पढ़ के सुनाती हूँ। आज हमने पेज नंबर 7 तक पढ़ा है, अगले दिन मैं पेज नंबर 7 से स्टार्ट करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। ये किताब मैंने खरीदी है, आप भी खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। पढ़ने से आपकी सोचने की दिशा बदलेगी और सोचने की दिशा बदलते ही आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स और वापस ज़रूर आना अगले एपिसोड में। आई विल बी वेटिंग। बाय बाय।